Good morning to everyone. We have started with recording for incomplete records, accounting for incomplete records, so which can also be called as single entry. So we have started our full-fledged sum already. जहाँ पे we prepare final accounts. Last sum we have done one of the sum. Last lecture, we have done one of the sum where trading P&L and balance sheet was prepared. So now let us do this sum. Let us read the sum. Mr. Incomplete has supplied the following information. So Mr. Incomplete is name of the proprietor who has supplied the following information. Balance sheet as on 31st March 2018, and this is the balance sheet given of 31st March 2018. Creditors, capital, liability side, asset side में there is furniture, machinery, stock, debtor and cash balance. Now the receipts, a summary of receipts and payments for the year ended 31st March 2019 is given. See, the word summary represents that this is not a complete receipt and payment account. What do you mean by receipt and payment account? Receipt means inflow of cash, payment means outflow of cash. This is nothing but your cash book. देखो जरा टोटल देखो दोनों साइड का. Debit side is 6339 and credit side total is 6020. It is not tallying. Means this is not the complete cash book. That's why they have used the word summary. Yeah, extract of the receipt and payment account. But what is missing here? देखो आप to balance brought down and by balance carried on. कैश है तो असेट है. कैश क्या होता है? कैश बैलेंस. असेट होता है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है. तो इधर टू बैलेंस बॉट डाउन करके नहीं दिया, जबकि बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है 33 रुपीज, लेकिन इधर कैश बुक में वो बैलेंस नहीं दिया. तो अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, आई विल हैव टू प्रिपेयर द कैश बुक अगेन. एवरीथिंग इज सेम, बस उसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो वी विल गेट द क्लोजिंग की एंड ऑफ द ईयर हाथ में कितना कैश था. वी विल गेट दैट बैलेंस. सी, इन द कैश book receipt and payment account, 2 debtors is given. 2 debtors in the debit side means what? पैसा आ रहे किससे? डेटर से. 2 debtors mean debtors ने पैसा दिया. डेटर्स कौन है? हमारे कस्टमर्स है जिनको हम उधार में क्रेडिट में गुड सेल करते हैं. तो क्रेडिट कभी तो वो लोग वापस करेंगे. तो डेटर से पैसा मिला तो इट इज इन द रिसीट. डेटर्स के क्रेडिट में आएगा. कलेक्शन बाई कैश, बैंक कलेक्शन. फिर टू सेल्स. कौन सा सेल्स रहेगा? जो जिसमें पैसा आ रहा है. कौन सा सेल्स है? जिसमें इमीडिएटली पैसा आता है. इट इज नोन एज कैश सेल्स, वेयर वी सेल द गुड्स इमीडिएटली ऑन रिसीविंग कैश. तो ये जो टू सेल्स है, कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स है. Then to capital means Mr. Incomplete ने बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड किया. This can also be told as, देखो कैपिटल तो ऑलरेडी है 3150. Can you see this? 3150 का कैपिटल तो ऑलरेडी है. उसके बाद अगेन टू कैपिटल 200 means this is nothing but additional capital introduced when again if the in between the year or after the initial capital, उसके बाद जितने बार भी दोबारा ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करेगा तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं. करेक्ट? दैट इज एडिशनल कैपिटल. नाउ ये तो क्लियर हो गया डेबिट साइड. कम टू द पेमेंट साइड.
receipt side, debit side है. Now come to the credit side, that is payment side. by creditors means हमने किसको पे किया? क्रेडिटर्स को पे किया. क्रेडिटर्स कौन है? हमारे सप्लायर्स है जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं. our suppliers from whom we purchase goods on credit. so it is by creditors, money received, sorry, money paid to the creditors. payment है तो paid होगा. payment मतलब पैसा बाहर जा रहा है. everyone agree with me? payment मतलब money is going out. by wages मतलब वेजेस का पेमेंट किया है. वेजेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस. फैक्ट्री रिलेटेड वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को व्हेन वी पे द वेजेस, व्हेन वी पे दैट, मेक दैट पेमेंट, इट इज नोन एज वेजेस. सो दिस शुड कम वेयर? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट. कहाँ आते हैं वेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं या पीएनएल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट. करेक्ट आंसर. बाय जनरल एक्सपेंस, this is again expense, but general expense, other expense, this comes in the profit and loss account. By machinery means we have purchased machinery. already machinery था 420, हमने additional machinery खरीदा 160 का. right? purchase of machinery, asset खरीदा तो मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा. बैलेंस शीट असेट में मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा 160. by drawings, what is this drawing? Drawing means owner of the business, that is Mr. Incomplete, has withdrawn money from the business 536. so this will be deducted from the capital. बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे. ड्रॉइंग 536 करेक्ट. तो ये सब तो क्लियर हुआ. यहाँ पे एक चीज है, तो बैलेंस कैश का ओपनिंग बैलेंस नॉट गिवन, क्लोजिंग बैलेंस नॉट गिवन. ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट हमें समझ में आ जाएगा. कैसे बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट है? नीचे देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. एंड ये कब का है बैलेंस शीट? 31 मार्च 2018. 31 मार्च 2018 का कैश बैलेंस मींस दैट इज द ओपनिंग कैश बैलेंस. 1 अप्रैल 2000, अगर ईयर 31 मार्च 2019 को खत्म होता है तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2018, खत्म हुआ 31 मार्च 2019. सो 31 अप्रैल 2018 का कैश यहाँ पे दिया है 33 रुपीज. बैलेंस कैश क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस कैश बैलेंस, दैट इज योर कैश बैलेंस एट द एंड, कितना है? टू फाइंड आउट दैट वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट. 33 रुपीज टू ओपनिंग बैलेंस लिख के इसको क्लोज करेंगे ना तो हमें बाई बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा. पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बैलेंस करने में समझेगा. See, there may be negative cash balance also. Have you heard about negative cash balance? Negative cash balance is known as bank overdraft. Negative bank balance या cash bank balance is known as bank overdraft. जिसमें आप ये opening balance 2 में होता है ना असेट का, closing balance भी 2 में होगा. तब समझ में आएगा ये कि नेगेटिव कैश बैलेंस है जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. तो कभी भी क्वेश्चन में आपने क्रेडिट्स, नॉर्मली कैश मतलब असेट, असेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होना चाहिए, बट आप कभी भी डेबिट साइड में भी देखोगे तो कंफ्यूज मत होना. बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमको नॉर्मली बैंक में हमारा पैसा होता है, बैंक में हमारा पैसा होता है जो हम कभी भी ले सकते हैं जब जरूरत हो, बट उल्टा हो जाता है, मतलब हमें बैंक को पेमेंट करना. That is known as bank overdraft, means the negative bank balance or negative cash bank balance. That normally what happen, normal situation, we have our balance in the bank. Bank balance हमारा पैसा बैंक में होता है, but ऐसा बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, हमें बैंक को पैसा पे करना है, उल्टा हो जाता है. We have to pay because what happens, what facility bank gives exclusively to the current account holders. Who are the current account holders? Current account holders are the business people who do business.
उनको ये फैसिलिटी होता है कि उन लोग का मतलब वो लोग रोज पेमेंट्स डिपॉजिट उनका चलता रहता है मेनी टाइम्स इन द वीक। तो वो लोग अगर कभी, और उनको भी पता नहीं रहता है कि बैंक में कितना बैलेंस है, कभी वो लोग चेक्स देते रहते हैं। तो कभी ऐसा हो गया, चेक दिया एक सपोज क्रेडिटर को, एक उनके क्लाइंट्स को चेक दिया, लेकिन बैंक में उतना बैलेंस नहीं है जितने अमाउंट का चेक है। तो अगर वो चेक बाउंस हो गया तो बिजनेस का रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा। इवन उसको सू भी कर सकता है ऑपोजिट पार्टी दे, उसका चेक क्या, उसने जो चेक दिया था मुझे वो डिसऑनर हो गया। So that is not, that creates a very bad image of the business. So bank will interfere here, and what the bank will do, in spite there is not sufficient balance in the account, but the bank will honor that check. Suppose बैंक में सफिशिएंट पैसा नहीं है और ये जो ओनर है बिजनेसमैन, उसने क्या किया, एक चेक दे दिया क्लाइंट को, एंड क्लाइंट इज नाउ कम टू गेट द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। उसको पैसा चाहिए उसके चेक जो मिला है, लेकिन बैंक में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। फिर भी बिकॉज बिजनेस का नाम खराब हो जाएगा अगर चेक वापस चला जाएगा, तो इसलिए बैंक ऑन बिहाफ विल हॉनर द चेक, एंड देन वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। ये क्या बैंक ऐसे फ्री में दे देगा पैसा? फ्यूचर में ये पैसा वापस करना है ना बिजनेसमैन को, बैंक को, द बिजनेसमैन लेटर, बिकॉज बैंक बिजनेस में तो पैसा कभी अकाउंट में रहता है कभी नहीं रहता है, आते जाते रहते हैं। तो जब भी पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा बैंक ये ऑटोमेटिकली सेटल कर देगा। इवन बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक कभी इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। सो डेट ऑल डिपेंड्स ऑन द बैंक, वी आर नॉट कंसर्न ऑन ऑल दिस। जस्ट मेरे को तुम लोग को बताना था कि कभी नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है कैश बैंक बैलेंस में, और वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट असेट में नहीं दिखाते, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में दिखाते, बिकॉज इट हैज द owner of the business, not owner, business has to make the payment to the bank, इसलिए फ्यूचर में पैसा पे करेगा, इसलिए हम उसको लाइबिलिटी साइड में बताते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मुझे कैसे मालूम क्लोजिंग बैलेंस? देखो, क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 2019, ऊपर क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 2018 है 721, डेट क्या है 31 मार्च 2018, और नीचे जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है बिकॉज इट इज क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2019। सी इंपॉर्टेंट, सी द डेट 31 मार्च 2019, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। सेम फॉर डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस इधर है डेटर का 982 and closing balance is here. Closing balance is here 880. Then stock, ये कौन सा स्टॉक है? 31 मार्च 2019 क्लोजिंग स्टॉक है बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो इधर है, यहाँ पे है 1 अप्रैल का 31 मार्च 2018 का स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और 31 मार्च 2019 के स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? closing stock. Credit purchase is given. Credit purchase is given. And what is given? Credit sales. Depreciate machinery by 10%. Machinery, there is a depreciation. So machinery, there is a depreciation. ध्यान में रहेगा ना, मशीनरी में depreciation है। और provide RTD. Debtors में we'll have to create RTD. So prepare trading profit and loss account for year ended 31st March 2019, and we have to prepare balance sheet on the same date. Balance sheet on the same date. समझा? What we have to do? We have to prepare trading P&L account and we have to prepare balance sheet. Without wasting time, let us, what is given first? यहाँ पे ये द बैलेंस शीट दिया है ना, ये बैलेंसेस में डेप्रिसिएशन,
एडिशनल परचेस, ये सब रहेगा आरडीडी, लेकिन ये बैलेंस तो यही रहेगा ना, इसको कॉपी करके करंट ईयर बैलेंस शीट में डाल देते। बैलेंस शीट इज हियर, क्या किया हमें, बैलेंस शीट हमने यहाँ क्या प्रिपेयर किया, ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट अस कॉपी द अमाउंट ऑल्सो। अमाउंट कितना है, ये ना सारे अमाउंट सेम नहीं रहेंगे, तो मैं सिर्फ अभी के लिए कॉपी कर रही हूँ, बिकॉज अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे ना। एक काम करते, अमाउंट बाद में कॉपी करते, अभी नहीं करते। लेट अस स्टार्ट। कैन वी प्रिपेयर कैश बैंक बैलेंस फिर से, कैश बुक, सी हियर, कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, तो क्या हम फिर से कैश बुक क्रिएट करें फ्रेश, ये तो समरी है ना, हम एक कैश बुक प्रिपेयर करते वर्किंग नोट में, बिकॉज यहाँ का टू बैलेंस बॉट डाउन और बाई बैलेंस कैरीड डाउन, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, तो हम कैश बुक एक फिर से बना देते। तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे एंड वी विल प्रिपेयर कैश बुक अकाउंट। कैश बुक अकाउंट में वी वांट कैश बुक में कौन सा साइड होता है, रिसीट, रुपीस एंड पेमेंट, रुपीस। नाउ कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश बुक मतलब असेट या लाइबिलिटी, कैश बैलेंस किधर होता है, कैश किधर होता है, लाइबिलिटी में या असेट में, असेट में होता है। तो यहाँ ओपनिंग असेट में कैश का बैलेंस है 33 रुपीस, कैश का बैलेंस कितना दिया है 33 रुपीस, तो ये टू बैलेंस बॉट डाउन लिखे इसको। कैश बुक में ये हमारे पास 33 रुपीस का कैश था, कभी 1 अप्रैल 2018 में, जब ये साल स्टार्ट हुआ। सो वी विल राइट डाउन, इसको बोलेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33 रुपीस। अभी इसके अलावा रिसीट साइड में क्या क्या दिया है, ये पूरा कॉपी कर ले, क्योंकि ये पूरा रिसीट साइड है ना, तो ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। एंड अमाउंट भी कॉपी कर लेते हैं। दिस वी आर डूइंग फॉर ओनली वन रीजन, वो रीजन क्या है, वी वांट द क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। नाउ लेट अस कम टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ये सब है पेमेंट्स, पूरा पेमेंट साइड में लिख लिया, एंड अमाउंट भी ट्रांसफर कर लेते। अभी इसको टैली करेंगे, हाँ, नाउ वी विल टैली, डू द टैली। देखो कौन सा साइड हैवी है, कैश बुक का कौन सा साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है, कितना टोटल आ रहा है 6372। आर यू गेटिंग दिस अमाउंट 6372। व्हेन वी एड ऑल द डेबिट, क्रेडिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल इधर ऑलरेडी हमने देखा है 6020। 6020 मतलब क्रेडिट साइड इज स्मॉल ना, क्रेडिट साइड बैलेंस इज स्मॉल। सो अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, क्रेडिट डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा बाई बैलेंस carried down. So how much you are getting? We are getting 352. This is what? This is cash balance at the end. This is cash balance at the end. तो हमने बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश लिखा है, उसका अमाउंट लिख लेते हैं, 1 मिनट।
352, so यहाँ पे let us write 352. कैश बैलेंस लिख लिया 352, ये हो गया. नाउ कैपिटल बैलेंस ओपनिंग कितना है 3150. क्रेडिटर का दूसरा बैलेंस दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है, आई फॉरगॉट द अमाउंट 3150. सो यहाँ पे लिखेंगे इनर कॉलम में 3150. You start from anywhere, it is not important, just you have to end properly. जरूर आप किधर से भी स्टार्ट करो, बट एंडिंग में आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो डेटर अकाउंट बनाते हैं क्या, लास्ट अकाउंट में भी हमने नहीं किया, लास्ट सम में भी, ये सब में लेटर्स प्रिपेयर, डेटर अकाउंट भी बनाते हैं और क्रेडिटर अकाउंट भी प्रिपेयर करते. See, this is lengthy. This chapter is lengthy. पर ज्यादा नहीं रहेगा, हम 2 ही अकाउंट बनाते हैं. इसमें बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल नहीं है ना, तो वो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है. Let us insert a table. Particulars. Rupees. Here, now next. Same I will copy here for the creditor also. अब डेटर बताओ, डेटर असेट है या लाइबिलिटी? असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस कितना है डेटर का, डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, डेटर इज 982. सो वी विल राइट हियर डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में, बिकॉज डेटर हैज डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बॉट डाउन 982. नाउ क्रेडिट बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? सी डेटर इज अ असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, बट क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है, तो डेबिट मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे 880. डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 880. सो वी विल राइट बाई बैलेंस कैरीड डाउन, by balance carried down, how much it is 880. Same way let us go for the creditor का opening balance 721. Now tell me, creditor is a liability, we can see liability side में creditor लिखा है, but liability मतलब credit balance, liability मतलब credit balance. So credit side में लिखो by balance brought down, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 721. It is 721. Now let us go to the closing creditor कितना है 816. It is how much 816. Creditors मतलब liability means credit balance, but closing balance is always shown on the opposite side. So 816. if जब तक कुछ बताते नहीं है तब तक हम यही मानेंगे ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट में रहेगा. टू बैलेंस कैरीड डाउन 816. This is done. Now go to the cash पेमेंट, अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे पहले 2 डेटर्स दिया, 2 डेटर्स मतलब डेटर से पैसा मिला, इधर 2 डेटर, तो डेटर अकाउंट में क्या रहेगा 2 का ऑपोजिट बाय, एंड डेटर से पैसा मिलता है, डेटर असेट डेबिट बैलेंस, पैसा देंगे तो कम हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट बाय 4276 याद रखो 4276. तो यहाँ पे लिखेंगे
by cash bank account. How much was the amount? 4276. ये हो गया. नेक्स्ट क्या दिया है? सेल्स. कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स है. क्रेडिट सेल्स कम्स इन द डेटर अकाउंट. टू सेल्स 1863. टू सेल्स 18. सो 1863 सेल्स है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स कैश एंड क्रेडिट. कैश सेल्स कितना है? अभी हमने देखा इट इज 1863. तो वी विल राइट हियर 1863. इसके बाद क्या दिया है? कैपिटल. कैपिटल बिजनेस में पैसा आता है. इट इज इन द रिसीट साइड, मतलब मनी इज कमिंग इन. ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया 200 एज कैपिटल, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो लेट अस गो टू लायबिलिटी 200 का. लेट अस राइट हियर एडिशनल कैपिटल. एड एडिशनल कैपिटल. हाउ मच इट इज? 200. 200 ये हो गया. कैश बुक का डेबिट साइड हो गया. क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स मींस वी हैव पेड. पेमेंट मतलब पेइंग मनी पेड टू द क्रेडिटर्स. बाई क्रेडिटर. क्रेडिटर में रहेगा टू कैश. ऑपोजिट अकाउंट ना. क्रेडिट तो ये बाई का ऑपोजिट टू. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट. तो ये कौन सा अकाउंट है? कैश. तो बाई क्रेडिटर्स क्रेडिटर अकाउंट में हो जाएगा टू कैश. अमाउंट कितना है? इधर लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट. हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज 3954. कितना अमाउंट है? 3954. ओके. 3954. See here it is given 3954. इसके बाद वेजेस है. वेजेस कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में 743. 743 याद में रखो. टू ओपनिंग स्टॉक. ब्लैंक रखेंगे, बाद में लिखते हैं, इसको फिल करेंगे. टू परचेसर्स. ये तो स्टैंडर्ड है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ये दो होना चाहिए. उसके बाद टू वेजेस. हाउ मच वाज द वेजेस अमाउंट? 743. yes 743. नाउ बाय जनरल एक्सपेंस P&L अकाउंट में 627. बाय जनरल एक्सपेंस इन द P&L अकाउंट. इधर आएगा ना जनरल एक्सपेंस. डेबिट साइड में वहां बाई है क्योंकि पैसा जा रहा है. यहाँ टू में आएगा. बिकॉज वाई? बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस का अमाउंट क्या है? 627. पर 627 आई विल राइट हियर नो एडजस्टमेंट, इसलिए आउटर कॉलम. देन व्हाट वी हैव? मशीनरी 160. तो मशीनरी में जाके ऐड करेंगे. मशीनरी में जाके ऐड करेंगे. सो मशीनरी ऐड परचेज ना. ऐड परचेज 160. लेट अस राइट हियर. दूसरा अमाउंट वहां से लिख लेंगे क्या है. फिर उसके बाद ये 160. व्हाट एल्स इज गिवन? ड्रॉइंग माइनस. कैपिटल में से ड्रॉइंग माइनस होता है. विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 536. 536. सो यहाँ पे लिखेंगे लेस ड्रॉइंग 536. ब्रैकेट में लिख लेती हूँ मैं 536 बिफोर आई फॉरगेट. लेस ड्रॉइंग्स.
प्रॉफिट या लॉस इधर ऊपर यहाँ आना चाहिए, तो पहले ही मैं एक जगह छोड़ देती हूँ. आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू लीव ओनली प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एडजस्ट करने के लिए. ये हो गया. नाउ वी विल डू वन थिंग. क्रेडिट परचेज दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है. क्रेडिट परचेज दिया है और क्रेडिट परचेज कितना है 4049. क्रेडिट परचेज किधर आएगा? क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आएगा ना, क्रेडिट ज्यादा होगा. बाय क्रेडिट परचेज हाउ मच इट इज? इट इज 4049. 4049. सी वेदर दिस अकाउंट इज टैलिंग. देखो ये अकाउंट टैली होता है क्या? बिकॉज सब चीज मिल गया है हमें. सी वेदर इट इज टैलिंग विद दिस अमाउंट. क्रेडिटर अकाउंट से तुम लोग को शो करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया, नहीं तो नहीं प्रिपेयर करते तो भी चल जाता, बिकॉज ऑलरेडी जो भी क्रेडिटर से चाहिए वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. हमें क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं हो रहे या हो रहे, टैली हो रहे. So done. ये account just because previous sum also I did not show, so this sum I have shown. Okay. कब हमें क्रेडिटर अकाउंट कंपलसरी प्रिपेयर करना होता है? जब क्रेडिट परचेस या तो नहीं दिया या क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दिया, that time compulsory we have to prepare this account. Now डेटर का क्रेडिट सेल्स दिया है. डेटर का क्रेडिट सेल how much it is? 4174. तो यहाँ पे देखो क्रेडिट सेल से डेटर इंक्रीज होता है. सो डेबिट डेटर डेबिट बैलेंस. जब उधार में सेल करेंगे तो उधार और बढ़ेगा, डेटर और इंक्रीज होगा. जब हम लोग क्रेडिट में सेल करेंगे तो क्रेडिट में किसको सेल करते हैं? डेटर को. तो और क्रेडिट सेल करेंगे तो और डेटर इंक्रीज होगा. हाउ मच इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 4174. नाउ सी वेदर दिस अकाउंट इज टैलिंग. हाउ मच? 5156. Is it, are we getting this answer? 5156. 5156. दोनों साइड का टोटल निकालो, यू विल गेट सेम आंसर. मींस इट इज टैलिंग. टैलिंग का मीनिंग क्या है? दोनों डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज मैचिंग, इज सेम. सो वी विल से इट इज टैलिंग. नाउ हमने बैलेंस शीट में डेटर का अमाउंट लिखा, क्लोजिंग डेटर नहीं लिखा ना. क्लोजिंग डेटर इज हाउ मच? 880. तो यहाँ पे लिख लेते 880. क्रेडिटर का क्लोजिंग कितना है? क्रेडिटर का क्लोजिंग है 816. तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग फिगर्स लिखना पड़ेगा ना. क्रेडिटर इज हाउ मच? 816. So we will write here 816. राइट. क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा ये बैलेंस शीट में, यहाँ पे क्लोजिंग, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस वाला बैलेंस शीट ही दिया हुआ है यहाँ पे. सी हियर, यहाँ पे जो क्रेडिटर था कि पिछले साल का बैलेंस था, ये साल का एंडिंग का बैलेंस दिया है, तो इस साल के बैलेंस शीट में वो एंडिंग वाला क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है वो आएगा. सो नाउ स्टॉक क्या है? 876. स्टॉक ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग बैलेंस शीट वाला स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना. 876. सो राइट डाउन 876. एंड यहाँ पे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है. क्लोजिंग स्टॉक दिया है 854. क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? इधर आएगा. बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? हमने अभी देखा 854. सो विल राइट हियर 854 and one more place it will come. Balance sheet asset side 854. Done.
नाउ मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 420, कैसे मालूम? ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला. लेट अस सी हियर, ओपनिंग बैलेंस शीट में हाउ मच इज मशीनरी? ऑलरेडी हमारे पास 420 था, ये साल में 160 का मशीनरी परचेज किया तो ऐड कर दिया ऑलरेडी. एंड फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. 1560 पहले भी था, अभी भी उतना ही रहेगा 1560. सो वी विल राइट 1560, यहाँ पे लिखेंगे 1560. दिस इज ऑल्सो डन. नाउ परचेसेस कितना है? क्रेडिटर अकाउंट में से 2 परचेस चाहिए हमें. सॉरी, सिर्फ एक परचेस है, कैश परचेस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. कैसे पता चला? सिर्फ इधर किधर भी परचेस है, बाई परचेस नहीं है. मतलब वी हैव ओनली क्रेडिट परचेस विच इज हाउ मच? क्रेडिट परचेस इज 4049. तो यहाँ पे लिखेंगे परचेसेस में ब्रैकेट में ओनली क्रेडिट 4049. एंड क्या क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स इधर ऊपर से भी देख सकते हैं. क्रेडिट सेल्स इज 4174. 4174. दोनों का टोटल इधर लिखो, कितना होता है? 60. कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का टोटल is 6037. This is also done. Now any adjustment is left out? Machinery 10% depreciation. So go here, add करो दोनों को, कितना होता है? 580 होता है. 580 होता है. So ये दोनों को ऐड किया मिलता है 580. इसमें से लेस depreciation at 10%. At 10%, 58 माइनस करो, कितना आएगा? 58 माइनस करो, हाउ मच यू विल गेट? 522. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी होता है. डेटर में डायरेक्ट आरडीडी ना, तो मैं 880 इधर लिखूंगी. डेप्रिसिएशन सो इधर लिखेंगे. पीएनएल अकाउंट में आता है टू डेप्रिसिएशन 5858. इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, फाइनल एडजस्टमेंट. प्रोवाइड आरडीडी ₹150. आरडीडी कितना है? 150. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज 150. सो डेटर में लेस आरडीडी, यहाँ पे लिखेंगे 150. माइनस करो 150. 880 में से हाउ मच वी गेट? वी गेट 730. एंड 150 का एक और इफेक्ट आएगा इन द पीएनएल अकाउंट. 2 आरडीडी 150. नाउ all adjustments done, everything done. So close this. क्लोजिंग स्टॉक हमने इधर लिखा ना? हाँ लिखा. सो डू वन थिंग, क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो. 6891 इधर आया. 6891 जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? माइनस करो, you get 1223. Check you're getting this answer. By gross profit brought down, how much it is? 1223. देखो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है? 223. सेम अमाउंट को यहाँ लिखा और इधर लिखा. 2 नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. माइनस करो, कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग? 388. माइनस करो
627, 58 और 150 from 1, 2 to 3, you will get 388. तो ये भी मिल गया. बैलेंस शीट में ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट. ऐड नेट प्रॉफिट 388. सो आउटर कॉलम में माइनस करके सब कितना मिलता है? 3202. See whether you are getting 3150 plus 388 plus 200 minus drawings 536. So what is the balance sheet total? 4018. See here also you are getting the same answer. 4018. 1560, 5228, 54, 730 and 352 सबको add किया तो we get this answer, that is 4018. With this balance sheet getting tallied, the sum is done. Thank you very much everyone.